तो नमस्कार। और आज एनवायरमेंटल एक्शन इन इंडिया जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें 2 एपिसोड पहले हो चुके हैं ऑलरेडी। आज उसका तीसरा ये श्रृंखला है उसी में, जिसमें आज हम ट्री मैन ऑफ पुरुलिया दुखू मांझी से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा उनका परिचय एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम देख पाए कि किस तरह का काम है। तो एक डॉक्यूमेंट्री से हम स्टार्ट करते हैं, छोटी सी। फिर उसके बाद हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे। মন্ডল ভিতর মঞ্জরি চৌকা পুহুরল পুরুবে পর তোর মুদ্রার কাটে আছে আর মুদ্রার এইগুলা সব বটে, এটা অন্য দিস না। আর এইটা বড় বটে, একটা বড়, এইটা এইটা আম বটে, এইটা এইটা আম বটে। হ্যাঁ, এইটা হইল এইটা, এটা তেঁতুল হইল, তেঁতুল তেঁতুল, এইটা তেঁতুল, এটা তেঁতুল বটে। এই কাঠগুলাকে দিতে হয়, এগুলা মুড়ির কাঠ। এই মুড়ির কাঠগুলা না দিলে লোকে নিয়ে যায়, তো লোকে নিয়ে গেলে আর গাছের আমার কোনো থাকে নেই, ছাগল ছড়ি খায় যাবে। সেই জন্য এগুলা করা ওঠে বাবা, এইগুলো করতে হয়। এইগুলো মুদ্রার কাপড়ে ওঠে বাপ। হ্যাঁ, এই গাছগুলো না দিলে চলবে না, বেটি নিয়ে যায়, অন্য লোকে নিয়ে যায় যারা এই যে ধান কাটে, তো বুঝলেন, এই ধান কাটে তারাও বেটিরা নিয়ে যায়, ওদের অভাব হই ভাত রাঁধতে গো, ভাত রাঁধতে অভাব হই, সেই করে ওই বেটিরে ঝাঁকিয়ে ঝুঁকে নিয়ে যায়। সেই জন্য এগুলো করেছি, এগুলো ছুঁই নেই, কেউ ছুবে নেই। মোড়া জিনিস কে ছুবে, দেখছো না, মোড়া জিনিস কেউ ছুবে নেই। একজন ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের এলাকাতে পরিবেশকে ঠিক করার জন্য নিজের আপন মনেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন, তিনি হলেন আমাদের এলাকার দুখু মাঝি, বাড়ি ঘোড়াবাঁধাতে। তো উনি নিজের আপন মনেই সরকারি যে সকল জায়গা আছে, যেমন পাবলিক প্লেস, যেখানে পাবলিক বিভিন্ন রকমের কাজে যান, যেমন হাট, শ্মশানঘাট, রাস্তার পাশে, এইসব জায়গাতে উনি নিজের আপন মনেই দীর্ঘদিন ধরে ওনাকে দেখছি যে নিজের ইচ্ছাতেই গাছ লাগাচ্ছেন। শুধু গাছ লাগানোই নয়, উনি অভিনব পদ্ধতিতে সেই সকল গাছের বেড়া দেন। সেটা হলো যে শ্মশানঘাট থেকে যে সকল ফেলে দেওয়া জিনিস, সেই সকল জিনিস দিয়ে উনি বেড়া দেন, পরিচর্যা করেন নিয়মিত। আবার যাতে ইঁদুরে না কুড়ে বা নষ্ট করে, তার জন্য হাট থেকে আবার যথারীতি
ইঁদুর মরা ওষুধ কিনে সেই গাছে প্রয়োগ করেন। গ্রীষ্মকালে আবার গাছে জল দেন। এবং এইভাবে উনি দীর্ঘদিন ধরেই গাছ লাগিয়ে চলেছেন, যেটা খুবই এলাকার পক্ষে ভালো। এবং আগামী যে প্রজন্ম, নতুন যে প্রজন্ম, সেই নতুন প্রজন্মের যাতে একটা সুস্থ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দেশ্যে উনি আপন মনেই এই কাজটা করছেন। লোকে একটা কাটে কাটে শেষ করে নিচ্ছে রে বাপ এই গাছ পালাকে, তো পরিবেশটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গাছ লাগা দরকার বটে, এই নাতি গেলে আমার আর বেশি লাগাবার বটে। আর যারা কাটছে তারা তো ভুল করছে, এক্সট্রা কাটলে 5 লাগাবার বটে, তোরা লাগাচ্ছে নাই। কারখানা ফারখানা করবার জন্য লোক কাটিয়ে ফেলছে, তো পরিবেশটা খারাপ হচ্ছে বাপ। গাছেই মানুষকে বাঁচাই ভাই, তোরা লাগাবে দাদা, গাছ না লাগালে হবে কি নাই। ওনার মধ্যে গরিবী ব্যাপারটা আছে, ওনার পরিবারে যদি যান দেখেন তাহলে সেটা পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু ওনার মন যে বিশাল বড়, তার মনের মধ্যে যে গরিবতা নাই, সেটা তার একটা বড় প্রমাণ, যেটা হচ্ছে ওনার এই মহৎভাবে গাছ লাগানো। গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, এই ব্যাপারে যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ উনি নিজে নিজেই নিয়েছেন। তার জন্য উনি কারো কাছ থেকে কিছু চান না, সরকারের কাছ থেকেও যে কিছু ওনার চাওয়া পাওয়া আছে সেটা নয়। তো এই যে কর্মকাণ্ড, সেই কর্মকাণ্ড দেখে এলাকার মানুষ দুখু মাঝিকে বলেন, এর চাইতে তো লোকের বাড়িতে কাজ করতে পারেন, যেখানে কাজ করলে আপনি অন্যান্য মানুষ যেভাবে মজুরি পান 200 টাকা, সেটা পাবেন। এটা গাছ লাগিয়ে আপনার কি হবে? আপনি তো সেখান থেকে টাকা পান না। কিন্তু উনি নিজের তাগিদে এই গাছটা লাগাচ্ছেন না, মানুষের জন্য লাগাচ্ছেন, সেইটা উনি উপলব্ধি করেছেন। এবং গাছ লাগিয়ে যে ওনার একটা আনন্দ আছে, এবং আগামী যে নতুন প্রজন্ম, সেই যে নতুন প্রজন্মের নতুন শিশুগুলোকে উনি সুস্থ প্রকৃতিতে রাখতে পারবেন, এই যে আত্মার সন্তুষ্টি, এটাই ওনার কাছে বড়। पकड़े जो सीतम जुरी पकड़े जो बड़े दारे दुरी बड़े दारे जुड़ी, सीतुम जुड़ी पकड़े जाम, जम कते रुड़ कते मोने से मन जुड़ी बांगे रोड़ा रे, मोने से मन जुड़ी बांगे रोड़ा। এই যে আমরা দুজনে এই গাছগুলা করি বাপ, এটা করম বটে, এইটা করম বটে, এইটা ইহা গাছগুলা বটে, এই যে সব। হ্যাঁ, আর এইটা আম বটে। এই এরকম ভাবে আমি গাছকে তৈরি করে লেগে লাগাই। কাকিমাও আপনাকে সাহায্য করেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, করে তো। এর জল দেয় রে বাপ, দুজন না হলে কি হয় রে বাপ, কোনো কাজেই দুজন না হলে হয় না। দুখু মাঝি প্রায় 10 থেকে 15 বছর ধরে রাস্তার ধারে ধারে প্রথম গাছ লাগাই। প্রথম মানুষ তাকে হাসে, কিন্তু আজকে সমাজের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে দুখু মাঝি একটা ভালো কাজ করছে। আমার ছেলে মেয়েদেরকেও বলতে চাই যে দুখু কাকু যা করছে সেটাই আমাদেরকে করতে হবে, কারণ গাছ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। গাছে কি দেয়? গাছে দেয় অক্সিজেন, আর কি না পশু পাখি বহুত রকম জিনিস সমস্ত উঠে। যখন ফলটা ফলে তখন ওরা খায়, তো ওরাও খুব সুন্দর থাকে। আগু আমি বেড়াতে দিই, নাহলে হবে কি নাই। শ্মশানের এই সমস্ত জিনিস, এই যে যত খাট আছে, এই কাঠ আছে, সেগুলো আগু বেড়াটা করি বাপ। বেড়াটা করেলি গাছের যে আমি এই চারা সম্পর্ক করি, তো চারা আমি লেগে আর কি করি ন ইটের গাদায় ফেঁকে দিই। এই ফেঁকার পরে কোনোটি সমস্ত ফেঁকে দিলে ওই চারাটা বাড়ে রে বাপ। আর ওই চারাটাকে লেগে তারপরে আমি ওইখানটায় লাগাই, তো গর্ত করা আছে, জড়ি গাছও বাড়ে, বড় গাছও বাড়ে, যে গাছ দিবে সেই গাছ ওঠে। আর আম জাম তো সমস্ত নিয়ে যাই, নিয়ে যাওয়ার পরে বাপ লাগাই দিই।
কেউ আর আমার গাছটা ছুঁই যায়, কোনো ভয় নয়। শ্মশানের কাঠ লেগা কোনো ভয় নাই, আমার গাছটা ভালো হয়ে গেল। আমি তো আর বেশি দিন নাই, আমি তো গত হয়ে যাব। এই তোমরা গাছকে লাগাও, খুব সুন্দর ভালো হবে। কাল আমি কত দিন, সবাই গাছ লাগালেই ভালো বাপ। যেটা প্রতিমা সেটা ভাসাইন তো, ওটা লেগে আর দিই, তখন আমাকে কিছু পয়সা ওরা দেয় বাবা, সেইটা আমার কিছু চলে। আর পেনশনও হয় পাই, এই বৃদ্ধ পেনশনটা পাই বাপ। একটা গাছ বলছে একটা প্রাণী জীব, একটা নাই অনেক জীব রে বাপ। সবাই বুঝবে তবে তো, তবে গাছ লাগালে দাদা পাবে বহু বড় জড়ি লাগাও, জাম লাগাও, বড় জড় লাগাও, জাম লাগাও, লাগাও দাদা লাগাও, লাগাও হে, পরিবেশে ভালো হবে গে দাদা, বহু ধন পাবে যে জানো হে, অক্সিজেন পাবে বলো বলো, পরিবেশ ভালো হবে গে হে, কতদিন বাঁচিব বাবু, লাগাবে গাছ ছাড়িবে না হে, হরি 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 বলো রে মা। तो बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री देखी है आपने सुदीप मित्रा के द्वारा। और अगर कोई बताए वीडियो के बारे में, क्योंकि हमें इतना खूबसूरत वीडियो देखा उनकी स्ट्रगल के ऊपर और उनकी रोज की दिनचर्या के ऊपर। जीत भाई, कुछ कहना है आपको वीडियो को लेके, या और भी कोई भी बोल सकता है, कोई भी साथी? जी जी। ये वीडियो बेसिकली बंगाली भाषा में है, लेकिन उसके सब टाइटल दिए हुए हैं। पुरुलिया एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे उस एरिया में दुखू माझी जी काम करते हैं। बहुत आपने उनको वीडियो में देखा होगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लेकिन कई वर्षों से जो है वो सिर्फ पेड़ लगाने का काम करते हैं, और इसलिए उनको ट्री मैन ऑफ पुरुलिया भी कहा जाता है। हम उनसे बहुत डिटेल में और बातचीत करेंगे, थोड़ा उनका नेटवर्क कनेक्शन का इश्यू आ रहा है, बात करेंगे रजनीश जी डिटेल में। जी जी। वो बंगाली भाषी हैं, हिंदी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो थोड़ा दूसरी भाषा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी, हमारे साथी हैं वहाँ पे सुदीप जी, वो उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये वाला जो वीडियो है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, सुदीप ने खुद बनाई है, और सुदीप के साथ बहुत तमाम और लोग हैं, आपने वीडियो में देखा है, जिन्होंने सुदीप को मदद किया है। बहुत शानदार है, एक तरह से उन्होंने पूरा वो दिखाया कि कौन सी प्रोसेस से वो यूज करते हैं, और एक जो बहुत अच्छी, बहुत इनोवेटिव टेक्निक उन्होंने यूज की है दुखू माझी ने। अक्सर क्या होता है कि पेड़ तो लगा दिया, और ज्यादातर पेड़ जैसे वो सड़क के किनारे लगाते हैं या खाली जमीन पे लगाते हैं, तो एक तो वो खराब हो जाता है, क्योंकि अगर उसको जानवर ने खा लिया, या दूसरा जो है लोग ने किधर इधर तोड़ दिया, तो उसको बचाने के लिए जो है वो हमारे जो अंतिम संस्कार के बचे हुए कपड़े और लकड़ियां होती हैं, उनका यूज करते हैं, और उसको प्रोटेक्शन बनाते हैं उसके चारों तरफ, ताकि लोग उसको टच ना करें। लोग उसको देख करके थोड़ा घृणा करते हैं, और थोड़ा अंधविश्वास भी है, क्योंकि शमशान भूमि से आया हुआ सामान है, तो वो टच नहीं करते हैं लोग, आसपास उसके नहीं जाते हैं। और उससे क्या फायदा होता है कि पेड़ को उगने में बड़ी आसानी होती है। तो ये बातचीत और करेंगे, हाँ ये बातचीत और करेंगे। अभी हम
तो हम अभी गेस्ट से सीधे रूबरू होते हैं। रजनी जी, एक तो थोड़ा शुरुआत से बताएं अपने बचपन के बारे में, परिवार के बारे में, और ये क्या करते हैं जीविका अर्जन के लिए या सर्वाइवल के लिए, बस ये एक सवाल था जी। आपकी ফ্যামিলি, আপনার পরিবারের ব্যাপারে বলুন, আর আপনি যে আপনার জীবিকা আর ছোটবেলার কথাও একটু বলুন। প্রথমে পরিবারের কথা বলুন, বলুন। শুনুন বাবা, জোহার জোহার। আমার পরিবার, আমার দুটা বেটা, তো দুটা বেটা আমার আছে। তো একটা বেটা আমার অসুখ আছে, তার মানে অসুখ তো আছেই বাপ, তার কারণ হ্যান্ডিক্যাপ হয়েছে। আর একটা বেটা আমি বিবাহ দিয়েছি, তো ওর ছেলাপুলা 3টা থেকে 4টে আছে। আর আমার আমি আছি, আমার পরিবারটা আছে। তো তো কষ্ট করাই চলে বাবা, খুব রকম, তবে চলে, এমন কথা নাই যে নাই চলে। তো আমরা ওই কৃষকের কাজ আমার বড় বেটা নিয়ে করে, আর এই হ্যান্ডিক্যাপে কোনো করতে পারে নাই। তবে কথা বলছে যে আমরা তো কোনো করতে বলতে একটা পেনশন পাইব, তো পেনশনের মধ্যে কিছুটা আমাদের হয়, আর অন্য অন্য কাজ তো করিয়েই, সেটা জানে নেই আমরা গরিব লোক, তো এগুলা সমস্তই করিবা। তার কারণ আছে, আর কষ্ট তো হয় সেটা ঠিক, আর এই সরকারের তরফে পাই সেটা নাই পাবো কেনে পাই। तो वो कह रहे हैं कि मेनली उनके फैमिलीज में उनके वाइफ और 2 बेटे हैं, और एक बेटा जो है वो हैंडीकैप्ड है, इसलिए कुछ काम नहीं कर पाते। लेकिन दूसरा बेटा जो है वो किसान है, और वो खुद भी किसान थे। मतलब वो खासकर छोटा सा जमीन है, उसमें से एक फसल होता है जो, और उसमें से ही उनका दिन गुजरान होता है। और ऐसा ही है, मतलब फैमिली के बारे में, और उनका जीविका यही है। और एक पेंशन मिलता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से, एक पेंशन जो होता है, यही है। रजनी जी हाँ, फिर एक सवाल और आ रहा था, हम लोग जब बात कर रहे थे कि क्या इंस्पायर किया उन्होंने कि उनको ये जो पेड़ उगाने के लिए इतने सारे, और ये कैसे, क्यों ये इतना सक्सेसफुल बन गया, या कैसे ये सक्सेसफुल बन गई, ये सब प्रोसेस ये भी जानना था। इंस्पिरेशन क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, तो हम सब के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए यही होगा कि क्या क्या इंस्पायर किया पेड़ उगाने की। আপনার ছোটবেলার কোনো ঘটনা বা কিছু যেটা এই গাছ লাগানোর ব্যাপারে আপনাকে উৎসাহ দিয়েছিল, কোন জায়গা থেকে আপনি মনে করলেন যে আপনার এই কাজটা করা উচিত? এই কাজটা আমার কাকা তো লাগা দিয়েছিল, গাছ তো আমরা কিছু লাগাই না। গাছ যখন আমরা লাগাই তখন তো লাহের গাছ লাগাতে, তো কাকা তো গুরুজন বটে, তখন আবার গাছ লাগাতে যদি তো এই আমাদের কুসুম গাছ লাগাতে, হ্যাঁ, তারপরে এই পলাশ লাগাতে, যা হয় কুসুম পলাশ। আর তারপরে তোমাকে বুঝি এই কাঁঠাল গাছ হচ্ছে কুল, এগুলো ফসল খুব ভালো হইতো। আগু 2.5 টাকালে 5 টাকা পর্যন্ত যে এই লাহা হইতো, সেইগুলো আমাদের ফুলতো। তো ফুলতো যখন তো আমার সংসার চলতো, এখন সেই অনুসারে আমরা কাজ করতে লাগি। তো গাছ তো বাবা লাগাইছিলেন আমার বাবা, তো গাছ যখন লাগাইলো তখন এই গাছগুলো তো গেল, তারপর গাছ তো যখন বহুত রকম ওই বড় গাছ চাই, আর জোর গাছের 2টা বড় গাছের পা, তো 2টা বড় গাছের মধ্যে কি হচ্ছে, অনেক অনেক পশু পাখি আসে, আর বহুত রোগ করে, তো মনটা বড় আনন্দ লাগে। হ্যাঁ, তো সেই হিসাবে আমি গাছ তো ঠিকই বলছি, এটা বড় ভালো উঠে একটা। তারপর কলকাতার থেকে আইলো বাবা ওই গাছ লাগানি লোক, ওই সাহেব, তো বলছে গাছ লাগালে, ওই বাবা কইছি তুমি জালে ওদের মনে তোমার এতে আছে, তো কইছি গাছ লাগালে কি হয় বাবা, কইছে গাছ লাগালে জানো, কইছে অক্সিজেন যায়। অক্সিজেন যখন যায় তখন কইছে খুবই মানুষের ভালো হয়, আর অক্সিজেন মানে জীব বাঁচে। তো কইছে বহু জীব বাঁচে, মানে গন্ধ, তো গন্ধ যদি বটে তাহলে আমি আজ থেকে বড় বড় গাছ লাগাবো, জড়ি লাগাবো, বড় লাগাবো, হ্যাঁ, তেঁতুল লাগাবো, আর কুসুমও লাগাই বাপ। এই তারপরে কি করি, সমস্ত করাই, এই বহুত পাখি আছে, ওগুলা খাই, তখন মনটাই আনন্দ লাগে। আর কি বটে, গাছ যদি না লাগাই হোক তাহলে প্রাণে আর বাঁচতে পারবে না। কল কারখানা বহুত রকম আছে,
অক্সিজেন করলি না যদি হয় তো মানুষ মরিয়ে যাবে একবার, তো বেশি ভাবে লাগাতে এটা উদ্ভিদে। দুঃখদা একদম ধরন একটু ধরন ट्रांसलेट করে তারপরে। सर वो कह रहे थे कि उनके पिताजी और चाचा जी मिलके छोटा सा जमीन में बहुत सारे पेड़ लगाए थे, लेकिन एक बार पैसों की जरूरत पड़ा तो बहुत सारे पेड़ उनको काटने को मतलब काटना पड़ा। तो उसके बाद उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत सारे पंछी बहुत प्राणी उसमें मतलब उनका निवास था। ये पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ थे उसका छाव भी मिलता था, उनको बहुत अच्छा लगता था, और इस पेड़ पौधे में बहुत सारे प्राणी और पंछी जो निवास थे वो भी चले गए पेड़ काटने के साथ साथ। तो उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे शहर से एक मतलब कोई शिक्षक आए थे यहाँ पे, टीचर, जिनके साथ उनको मतलब मिलना हुआ और उनको पता चला कि पेड़ पौधे काटने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाता है और हमारे जीने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो जो पुराने उनके बचपन के जो पेड़ थे वो काट दिए, उनके बाद उनको पता चला कि ऑक्सीजन और ये मतलब जितना एडवांटेज मिलता है पेड़ के बिना हमारा जीना भी मुश्किल है। मतलब इतना इंसान जो है अपना डेवलपमेंट के साथ साथ पेड़ काट रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, इसके लिए पेड़ काटना पड़ता है। ये सारे जो जानकारी उनको मिली और उनका जो अपना तजुर्बा वो सब मिलके उनको बहुत दुख पहुंचा। तो उस दिन उन्होंने ठान लिया कि हमें अभी से जिंदगी भर पेड़ ही बचाना है, पेड़ को लगाना है, जितना हो सके वो जिंदगी भर जब तक वो जिएंगे वो पेड़ लगाते जाएंगे, यही उनका कहना है। बहुत खूबसूरत बात है कि मतलब खाली पेड़ नहीं लेकिन पेड़ से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, चिड़िया है, वन्य जीव है, उनके प्रति भी एक सद्भावना का या एक, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कहाँ हुआ था। हाँ रजनीश जी, थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा कि केवल ऑक्सीजन या जीव जंतु के लिए ही पेड़ नहीं है। आपको शायद मालूम होगा कि कोरोना से जो बीमारी फैली है, क्लास ऑफ डिजीज है, इसको बोलते हैं जूनोटिक वायरस। मतलब जो कि ऐसा वायरस जो पहले एनिमल्स में होता था, ह्यूमंस में नहीं होता था। तो ये जूनोटिक वायरस जो है वो कैसे हमारे बीच में फैला, इसके बारे में जीत ने काफी अध्ययन किया है। तो मैं जीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बोलें और थोड़ा सा पिनाकिदा आप उसको सुन के आप दुखू जी को भी ट्रांसलेट करके बताइए कि वो कोरोना से भी बचा रहे सबको। जीत। थैंक यू सर। जैसे दुखू बाजी जी ने कहा कि जंगल के प्रति उनका जो लगाव बड़ा है वो एक घटना की वजह से है, जिसमें उन्होंने देखा कि पेड़ काटने से जो है वहाँ के जो जीव जंतु थे वो वहाँ से पलायन कर गए, पक्षी थे जो वहाँ से निकल गए। और ये घटना अक्सर होती है, पूरी दुनिया में होती है। जहाँ जहाँ जंगल कटता है वहाँ सिर्फ पेड़ नहीं करते हैं, बल्कि उस पेड़ के साथ साथ के आसपास जो रहने वाले जीव जंतु है, जिनका पर्यावास है, जिनका हैबिटाट है, वो सब पूरा खत्म हो जाता है और वो सब शिफ्ट होने लगता है। अब इसका एक सीधा एक प्रभाव तो ये होता है पेड़ कटने का कि भाई जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है। जो ऑक्सीजन की बात हम करते हैं बार बार, है ना, उसमें उसको प्रभावित करता है। और जो बाकी का जो वहाँ की जमीन है जो उसको उपजाऊ बनाती है, जो वहाँ के जानवर हैं जिनको वहाँ से घास और चारा मिलता था, वो सब कुछ तो होता ही होता है। लेकिन एक बड़ा जो बड़ा हिस्सा है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है उस वन्य जीव का या पक्षियों का जो वहां से निकल जाते हैं। और उसका जो है फिर हमारे ऊपर जो है दूसरे तरीके के प्रभाव आते हैं। अगर हम उसको जिस समय ना समझें, जिस समय उसके बारे में ना सोचें, जिस समय हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका दूसरे प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसमें जिसका हमने ताजा उदाहरण देखा, अभी हम उससे उबर भी नहीं पाए। कोरोना वायरस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है
कि कैसे अगर हम जंगलों को नाश करते जाएंगे तो वो कैसे वापस हमारे ऊपर अटैक करता है, वो सारी सिचुएशन कैसे अटैक करती है हमारे ऊपर, उसका जीता जाता उदाहरण ही है। होता क्या है कि हमारे अंदर कुछ तरह के वायरस होते हैं, कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ तरह के और प्रकार के छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। वैसे जानवरों के अंदर भी जो है किसी तरह के वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस कुछ होते हैं जो उनके फायदे के लिए होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इंसानों के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जानवरों के लिए भी फायदेमंद है। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो जानवरों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस और बैक्टीरिया और पैथोजेंस हैं, वो इंसानों के लिए फायदेमंद। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर तरीके से रहते हैं, इंसान एक पर्टिकुलर तरीके से रहता है, तो उसके लिए कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया लाभदायक हैं और कुछ नहीं है। वैसे जानवरों के लिए तो होता क्या है कि जब हम पेड़ काटते हैं, जब हम वहाँ का जो वन्य जीव और पक्षी है वो जब माइग्रेट होता है, वहां से कहीं दूसरी जगह जाता है, वो दूसरी जगह जाने से क्या है कि अपने जो वायरस हैं उसको उधर आसपास वो फैलने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो जंगली जानवरों के या पक्षियों के जो वायरसेस हैं वो इंसानों में आ जाते हैं, या उसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर वो पक्षी और जानवर जो है इंसानों के करीब आ गए हैं तो इंसानों के वायरस और बैक्टीरिया जो है जानवरों में चले जाते हैं, और वो जो है बड़ा विकराल, कई बार बड़ा विकराल बीमारी का रूप ले लेता है, जैसे कोरोना वायरस। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है कुछ प्रकार के जीव जंतु में, वन्य जीव जंतु में पाया जाता है, जिसमें चमगादड़ है, पेंगोलिन है और कुछ और भी हैं, जिसमें कोरोना वायरस होता ही है और उनके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वो उनके लिए लाभदायक है वो। लेकिन जैसे ही वो इंसानों में आया वो एक विशाल महामारी का रूप उसने ले लिया, और हमने देखा कि पिछले 2 सालों में कितनी तबाही मचाई है उसने। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी पिछले कई सालों में जो है बहुत सारे प्रकार के वायरसेस आए हैं और उन्होंने तबाही मचाई है। HIV एड्स उसमें से है, हाइड्रा उसमें से है, और तमाम प्रकार की और बीमारियां हैं जो इस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। इसको हम जूनोटिक डिजीजेस बोलते हैं, जैसे सर ने बताया था। और जंगल को काटने का सबसे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है, पर्यावरण के साथ साथ ये भी है कि हम उन बीमारियों से नहीं बच सकते हैं जो बीमारियां जंगलों से हमारे ऊपर, हमारे तरफ ट्रांसमिट होती हैं, या जो हमारे यहाँ से जंगल की तरफ ट्रांसमिट होती है। जैसे हमारे लिए महामारी बन गई कोरोना, वैसे जानवरों के लिए भी हमारे वायरस जो है उनके लिए महामारी बन सकती है और उनका भी विनाश हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से बैलेंस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सुधीर। तो वो बता रहे थे जैसे আমরা যেমন আমাদের আমাদের মধ্যে যদি কোনো জীবাণু আসে বাইরে থেকে আমাদের মহামারী হয়, তেমনি এই যে জঙ্গল কাটা হচ্ছে এত এবং মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, জীবজন্তু এবং জীবজন্তু থাকার জায়গাও কমে যাচ্ছে, এরকম অবস্থাতে যদি আমাদের থেকে জীবাণু কোনোভাবে জীবজন্তুদের কাছে যায় সেটা তাদের পক্ষেও ক্ষতিকর, ঠিক আছে? আর আমাদের জঙ্গল কাটার ফলেই জীবজন্তু জঙ্গলে আর থাকতে পারছে না, তাদের থাকার জায়গা হচ্ছে না। এবার এই যে করোনা ভাইরাস হয়েছিল, এটা এক ধরনের জন্তুদের মহামারী, জন্তুদের মধ্যে যে জীবাণু থাকে সেই জীবাণু আমাদের শহরে, গ্রামে, সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছিল, এবং তার ফলেই করোনা ভাইরাসের মতো একটা ভয়ঙ্কর মহামারী হয়েছিল, ঠিক আছে? তেমনি এর পরে যদি আমরা আরো তাদের থাকার জায়গার অভাব হয়, জঙ্গল যদি আরো কেটে ফেলি, তাহলে এইভাবে ছড়িয়ে যাবে তাদের যে জীবাণু, যেটা তাদের জন্য হয়তো উপকারী কিন্তু মানুষের জন্য এটা খুব বিপজ্জনক, এটা ক্ষতিকর, ঠিক আছে? তার মানে একটা ব্যালেন্সের দরকার আছে। জন্তুরা জঙ্গলে, জঙ্গল থাকলে জন্তু থাকবে, তাদের মধ্যে থাকবে তাদের যে ভাইরাস বলে, ভাইরাস জীবাণু, ঠিক আছে, কীটাণু, এইটা তাদের মধ্যে যেটা আছে সেটা ক্ষতি করে না, কিন্তু সেটা যখন মানুষের কাছে আসে তখন আপনার আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়, আমাদের পাওয়ারটা একদম শেষ হয়ে যায়, তখন একটার পর একটা মানুষ মরতে থাকে, যেমন আমরা দেখেছি করোনা ভাইরাসের মতো। এই ভাইরাসটা কোনোভাবেই জঙ্গল থেকেই এসেছিল, এখন আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে? ফলে জঙ্গল যদি কাটি জন্তু জানোয়ার কমে, তাদের থাকার জায়গা কমে যাবে। জঙ্গল যদি কাটো তো ঠিকই বাড়বে, রোগটা আসবে। আর যদি জঙ্গলটা বাড়াত হয় তবে আমাদের কিসের রোগ?
আমার ভাইরাস ফাইরাস কোনো হবে না, কোনোই হবে না। পুরা যদি এই জঙ্গল আমাদের ভর্তি করতে পারায়, আমার মতন আরো কত কত ভাই আছে, তারা যদি লাগায়ও তো ওই ভাইরাস হবে নাই। তার কারণ অক্সিজেনটা তো বেশি হবে, তো অক্সিজেনটাই তো ঠেলিয়ে নিয়ে যাবে। তো তাহলে আমাদের কেমনে এই রোগটা হবে বাপ? রোগ তো হবে না, রোগ কেন হবে? রোগটা হবে না, ভাইরাসটা আগুচুন পালাই যাবে। তো আমরা এটা দিয়ে জোগাড় করব, ভালো রকম গাছ লাগাবো, প্রচুর গাছ করব, তো ভাইরাস কেন হবে বাপ? ইহেই তো নিয়ে যাবে ठीक है, প্রকৃতি। আমি একটু বলে দিই। हाँ तुझे जानते हो? तो उनका ही भी ये मानना है कि अगर जंगल हम बढ़ाएं, जंगल कम करने के बजाय अगर जंगल बढ़ाएं तो जानवर जो हैं वो जंगल में ही रहेंगे, और जंगल के मतलब जो जीवाणु, जो कीटाणु, आई मीन जो वायरसेस जंगल से जानवर के लिए जो वहां से जो आए हैं इधर हमारे इंसान के अंदर, और इतना बड़ा मतलब हो गया, वायरस का स्प्रेड हो गया और कोरोना आ गया। तो अगर जंगल में जानवर रहेंगे तो वो नहीं आएगा हमारे तरफ, और हम सुख और शांति में मतलब बच सकते हैं। यही उनका भी मतलब ये राय है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। একটু শুনতে পাচ্ছি না, ওই গানটি একটু খুলে দিন না। প্রচুর গাছ হলে जी तो मेरा भी एक अनुभव रहा। हम लोग उत्तराखंड में गए थे, तो मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि इस बार बंदरों का आतंक रहता है गांव में। इस बार कम था क्योंकि लॉकडाउन के दौरान क्योंकि नेचर थोड़ा सेफ थी, तो शायद ये भी कारण बताते हैं लोकल लोग। अगला जो एक मतलब जिज्ञासा है मेरी वो ये है कि क्या इनका क्षेत्र क्या रहा, पेड़ वृक्षारोपण का, पेड़ उगाने का क्षेत्र क्या रहा, और दूसरा कोई खास तरह के पेड़ उगाए इन्होंने, या किस तरह के पेड़ों का इन्होंने वृक्षारोपण पे जोर दिया जाता? एक तो उनका क्षेत्र क्या रहा, किस किस एरिया में उगाए गए पेड़, है ना? क्या इन्होंने अपने जंगल जो ये बता रहे थे उसी में रखा, या उसका फैलाव ज्यादा रहा? और दूसरा ये भी कि कोई खास प्रकार के पेड़, क्या कुछ खास गुण हो उन पेड़ों के, ये जानना चाह रहा। अच्छा, ओके। तो ওনারা জানতে চাইছেন কোন কোন এরিয়াতে কোন কোন জায়গায় আপনি গাছ লাগিয়েছেন, হ্যাঁ, আর কোন কোন ধরনের গাছ আপনি লাগিয়েছেন? আচ্ছা, গাছ আমি ভালো রকম গাছ লাগাইছি বাবা। তবে এই আমাদের যে জায়গায় লাগাই সেটা জানো তো, এই আমাদের আছে শ্মশান, এই শ্মশানে আমি লাগাইছি। এক দুয়ে যে জনটিলটা এই চৌরিদা গ্রামে জনটা রাস্তা সেটি লাগাইছি, হ্যাঁ। এই তারপরে হাট বাগানে লাগাইছি, কৃষ্ণ মান্ডি আছে সেটি লাগাইছি। এই প্রত্যেক জায়গা গিলাই আমি গাছ লাগাই। আর গাছ তো আমার খুব ভালো রকমই হয় বাবা, তবে গাছটা খুব সুন্দর হয়, তার কারণ ওই বেড়ার তো আমি দিই। আর হ্যাঁ, গাছ গাছ লাগাই, জড়ি লাগাই, বড় লাগাই, হ্যাঁ, তেঁতুল, তারপর আম, জাম, হ্যাঁ, এই সবগুলা। করমও লাগাইছি বাপ, করমও লাগাই। এই বড় বড় জনগুলা লাগা আছে, সেগুলা আমার লাগা আছে, শ্মশানেও লাগা আছে, আর সমস্তই ভালো রকমই লাগাইছি। তবে লাগা ঠিকই আছে, তবে যদি আরো প্রচুর ভাবে যদি লাগা হয়, যত জীব আছে অতনার যদি গাছ করতে পারি, তো তোমার রোগ একটাও নেই হোক বাপ, কিছুই রোগ হবে নাই। যতটা জীব আছে তাহলে যদি এক গুণ বেশি আমি সবাই মিলিয়ে লাগাতে পারি গাছ, তো কত ভালো হবে সেটা জানো? কে কোন জীব মরবে নাই, মানুষ জীব কোনোদিন মরবে নাই, অক্সিজেন কোনোদিন অভাব হবে নাই। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है उनका। इसके बारे में उनका कहना यही है कि पहले तो ये बता दें कि ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर चड़ीदा गांव है, जो बागमुंडी ब्लॉक के नजदीक में है, बागमुंडी ब्लॉक के अंदर है। और वो ये सारे जगह में जितने किसान मंडी है, शमशान घाट है, रास्ते के दोनों तरफ मतलब पीडब्ल्यू रोड्स के दोनों तरफ वो पेड़ लगाते हैं। और बनियन ट्रीज, इमली का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़ और करम का पेड़, ये ज्यादातर लगाते हैं, जिसमें छांव बहुत होते हैं, इसका वॉल्यूम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताया, उनका एक मतलब हिसाब है अपना कि जितने लोग हैं गांव में उससे
1-2 गुना ज्यादा पेड़ लगाना है संख्या के हिसाब से, तभी मतलब परिवेश अच्छा होगा, ये उनका कहना है। तो बहुत खूबसूरत बात बोली है दोनों। हाँ, और बस इसी पे जोड़ते हुए कोई सहायता मिली सरकार से, एनजीओ से या स्थानीय लोगों से भी, तो ये थोड़ा सा बताएं। अगर कोई सहायता इनको कहीं से मिली जब ये काम कर रहे थे, उनके संघर्ष के दौरान कोई सहायता मिली इनको? আপনার কোনো সরকার থেকে বা এনজিও থেকে কোনো এই গাছ লাগানোর ব্যাপারে কি টাকা পয়সা দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে সাহায্য করেছে? না না না, দেই নাই বাবু, আমাকে কেউ অন্য কোনো সাহায্য গাছ লাগার পরে দেই নাই। তবে দিয়েছে তো বাপ একটা ওই যে এই আমার বৃদ্ধ পেনশন সেটা দিয়েছে। অধর্ম বলতে হবে না, অধর্ম বললে কোনো চলবে নাই, কারণ পাই, তবে অল্প পাই, 1000 টাকা পাই, সেটা আমার চলে নাই, কারণ আর পেনশন তো বটে, ঠিক বলি তো পেনশন বটে, সেইটার জন্য আমার চলে নাই। আর একটা আমার ছেলা যে আছে বাপ, তো ও শরীর খারাপ হয়েছে, তো আর হ্যান্ডিক্যাপ হয়েছে, তো চলতেও পারে না, সেটার মধ্যে কিছু আমার খরচ করতে আমার কষ্ট হয়ই। তো কি করব, কষ্ট হলেও তো গরিব লোক। কোনো এনজিও সাহায্য করেছে আপনাকে? না, করে নাই কেউ, অন্য নাই। তবে এই সাইকেলটা যে করেছে সেটা করেছে। আচ্ছা, এই সাইকেলটা করেছে বাপ, এই সাইকেলটা আমাকে দিয়েছেন অধর্ম, তারা এই যে ফরেস্ট ডিপার্ট দিয়েছে, অধর্ম বলতে নেই। हाँ हाँ ओके, हाँ 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 रजनीश जी, हाँ, तो उनको वैसे पेड़ लगाने के लिए फाइनेंशियली या फिर टेक्निकली कोई हेल्प नहीं मिला है अभी तक, ना सरकारी ना कोई प्राइवेट, बट एक नंबर है कि उनका जो रोजगार का माध्यम, जो हमने पहले ही बताया कि उनको एजेड पेंशन मिलते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो सिर्फ 1000 रुपया मिलता है, और हैंडीकैप्ड का एक वो मिलता है, मतलब तो वो भी बहुत कम है, उसमें से उनका दिन गुजरान होता है। अलग से ये पेड़ पौधे लगाने के वो पैसों के लिए नहीं करते हैं, ये वो अपने मतलब जो है अपना टारगेट है, अपना फिलोसॉफी है, इसके लिए वो करते हैं। लेकिन ये फिल्म जो है आपने दिखाए, आप लोगों ने देखा वृक्ष मानव, ये बनने के बाद उनको एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक साइकिल दिए हैं, वो एक पुराने साइकिल में घूमते थे, 20-25 किलोमीटर हर रोज घूमते थे पेड़ को मतलब केयर करने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। अभी ये देख के ना, वो टूटा फूटा एक साइकिल था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम क्या है? सेव द अयोध्या हिल। सेव द अयोध्या हिल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक नया वाला छोटा साइकिल दिए हैं उनको, वो साइकिल उनको बहुत हेल्प हो रहा है। तो एक साइकिल मिला है सेव द अयोध्या हिल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बाकी अलग से उनको कोई डायरेक्ट मतलब हेल्प नहीं मिला। हाँ, उनको फेलिसिटेट किया गया है 2-4 जगह में, जहाँ पे, और उनको वृक्ष मानव नाम पे ही अभी पुकारा जाता है, साइकिल के सामने भी लिखा हुआ है वृक्ष मानव। ठीक है ना? ओवर टू रजनीश जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या एक अच्छा दीजिए, हिंदी में बोलिए थोड़ा। वन महोत्सव जे संबर्धना আর কি। ओके, वन महोत्सव जो एक प्रोग्राम होता है, उसमें उनको बुलाया गया था, उनको बोलने को बोला है, और मतलब और फैसिलिटेट किया गया है। ओवर टू रजनीश जी। जी जी, बहुत खूबसूरत मतलब है, क्योंकि अकेले ही लगे रहे, और इतनी हिम्मत बहुत बड़ी बात है। एक सवाल ये था कि शमशान में जैसे छोड़े हुए सामान के साथ इन्होंने पेड़ की बाड़ लगाने का विचार एक तो आया कैसे पहले, और जब आया तो कुछ सामाजिक भी कुछ दिक्कतें हुई होंगी उसमें, तो थोड़ा उसका भी अगर ये बताएं, क्योंकि वो एक संघर्ष का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट। हाँ जी, फिर से बोलिएगा सर। हाँ हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे उन्होंने शमशान से छोड़े गए सामान या के साथ पेड़ की बाड़ लगाने का इनका विचार कैसे आया ये, और इसमें सामाजिक रूप से क्या ये इतना आसान था, या क्या क्या इनको संघर्ष करना पड़ा उस प्रोसेस में? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। শ্মশানের কাঠ, হ্যাঁ, শ্মশানের কাঠ আপনি ব্যবহার করেন বেড়া তৈরির জন্য। হ্যাঁ, এই বুদ্ধিটা আপনার প্রথম কবে এসেছিল? হঠাৎ কি করে এলো? হঠাৎ এলো বাবা, শুনুন, হঠাৎ এলো একদম তুই বেড়া দিতে দিতে আঘন মাসে ভালো কাঠ দিয়েছিলি, তো সেই কাঠটাকে বেটে চুরি করে নিয়ে গেল। আচ্ছা,
তো ঘরের লোকে এরকম এই জিতুদার মতো লোকে এই জিতু দেয়, আমি বলছি তোর গাছ গিলা গেল ওরে মোটা গাছ দিল, এই জিতু দেয় গাছ দিয়ে একবার বলছে তোর গাছ গিলা গেল যাদের, তো বলছি কি কইছ, দেখছি ওই ধার থেকে কিরকম গেল, বলছি কি কইল হে, তো কইছে গাছ গিলা তোর প্রায় নিয়ে গেলেন সবাই। বলছি ভাই তুমি দেখি তো, আমি ওই না খায় শ্মশান ঘাট গেল। আর পিনাকি কাকা ওই সময় লাগাচ্ছিল সেরকম আগুন করতে, ওই খুনলে আমি ওই শ্মশানের কাঠকে এই জোগাড় করছি আর ঘরে বেড়াবেড়ি করতো, তো পিনাকি কাকাই আমার ওই বেড়া দিচ্ছি না সেগুলো দেখছো, ই কাকাটা এইরকম করছে, তো কইছি কে জানে কি কি করছে বেড়া সঙ্গে, এটা সঙ্গে কোনো করবার নাই আমার। শ্মশানের কাঠ দিলে আর চুরি হতো না, একদম চুরি হবে না, আর কেউ লিখবে কো না। আর ওটা মা হয়েছে, কি মা হয়েছে, ওইটার নাম করুণা মা, ওইটার নাম করুণা মা, অন্য না জানেন তো, বাবা দিলে আমি চোখে দেখেন। আর শ্মশানের কাঠ দেওয়ার জন্য কেউ আপনাকে গ্রামের লোকেরা কি করতে দেয়, কাজ করতে দেয়? এই কোন সময় বলে ঢুকালে আমার গাছ দিই, গ্রামে ঢুকা দিলে গাছ দিই, ওরাও বলে দিবে এলাকাটা হচ্ছে কাঠের জ্বালানি এখন ব্যবহার করে। रजनीश जी, हेलो। जी 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 जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, का कहना यही है कि वो पहले अच्छा खासा मतलब बढ़िया वाला फेंसिंग बनाते थे, मतलब बहुत जगह से कीमती चीज लाके, है ना, काट वाट लेके, लेकिन वो चोरी हो जाता था जलानी व्यवहार, और फ्यूल के हिसाब से जो जलाने के लिए जो मतलब वुड्स होते हैं ना, वो कलेक्ट करते हैं जो लोग, वो इनको चोरी करके ले जाते थे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने मतलब तब उनको ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना है कि लोग छुएगा नहीं उसको, बिल्कुल पकड़ेगा नहीं, मतलब छूने से मना करते हैं किस चीज को, जिसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये आइडिया आया कि शमशान घाट से अगर वो आधा जला हुआ लकड़ी जो है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो लोग उसको छुएगा नहीं, कभी चोरी भी नहीं होगा, और उसमें क्या है खर्चा जो होता था उनका छोटा मोटा वो भी नहीं हो मतलब होगा। तो वो शमशान घाट से लकड़ी जो आधा जला हुआ लकड़ी और डेड बॉडीज के जो कपड़े हैं वो भी इस्तेमाल करना शुरू किए। अभी इसके चलते शमशान घाट से आधा जला हुआ लकड़ी और ये फटा हुआ पुराने डेड बॉडीज के कपड़े ये देख के गांव वाले नाराज हो जाते हैं, ठीक है। अभी तो ये आदी बन चुके हैं कि मना करने के बाद भी ये करते हैं, किसी का सुनते नहीं है, पेड़ के बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, इसीलिए बोलना छोड़ दिए। लेकिन पहले बहुत दिन तक इनको एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जो कि ये अपवित्र है या फिर शमशान घाट का चीज है, इसको देख के तुम मतलब मेरे घर के बाजू में क्यों बना रहे हो, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ा। लेकिन वो किसी को नहीं सुनते हैं, वो उसी से बनाते हैं क्योंकि वो चोरी नहीं होता है। जी जी। लेकिन अभी क्या फिर कम्युनिटी या लोगों के जो इतना इनका मिशन था खूबसूरत, तो कुछ तो बदलाव आया होगा लोगों के अब जब ये एक सफलता मिली इतने। हाँ, मैं ये कह रहा था इसी बात को जोड़ते हुए, ये जो बात कर रहे थे कि पहले तो लोग क्योंकि शमशान का है, कपड़ा है, ये है, और आलोचना हुई और इनको एक तरह का मतलब गुस्सा भी झेलना पड़ा होगा लोगों का। क्या अब क्या नजरिया है लोगों का उस सब इतनी लंबे एक जर्नी के बाद? कुछ नजरिए में तो बहुत बदलाव आया होगा या? तो आपने तो এত দিন ধরে এটা একটা লড়াই, তো हाँ आप लड़ रहे हैं, ठीक है। তো লোক अभी आपको আপনার কোনো পরিবর্তন লোক চোখে পড়ছে, আপনার কথা শুনছে, আপনার কথা কেউ শুনছে, আপনার মতো করে কেউ ভাবছে, আপনার কি মনে হচ্ছে এখন ভালো বলছে না মন্দ বলছে? না, এখন ভালোই বলছে। বিভিন্ন এখন আমাকে লোক ভালোবাসে, কারণ বুঝতে পারলো জিনিসটা কি করলে, কারণ একটা জায়গায় যখন আমি এই লাগাচ্ছি তখন আমার সবাই ওরা ভালোবাসে, আর ভালো লোক এই মাস্টার লোকে এই সব দিলে আমার ভালোবাসে। তার কারণ ওই ছাড় যখন হবে আর সমস্ত যখন চলছে তখন আমার এখন গ্রামের লোকও ভালোবাসে, আর সবাই আমাকে খাতেও দেয়, যার যে জনটা যার মনটা হয় অনুষ্ঠান যাবে এই কেমন কেমন অনুষ্ঠান করছে, এই কাকাটাই ডাকে, পিনাকি কাকাই ডাকে, আর এগুলাই ডাকে, সবগুলি জনগুলো দেখছো আমার সবাই কেউ আমাকে এই লোকগুলি কেউ আমার মন্দ করে,
এই যত লোক দেখছো আমাকে 2 4 পয়সা 10 টাকা 5 টাকা দেই, অধর্ম কথা বলছে। কি দেই তো উ দেই ওই গিলা আমার কেউ কেউ আমাকে আর মন করে নেই। বুয়াক মানলে বুয়াক দিই, উলে তো 5-10 টাকা আমার দিয়ে দেয়। अच्छा আমি এইটাই জানি। रजनीश जी, हेलो। हाँ जी, आ रहा है आपका आवाज। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए बोलिए। So he is being a little emotional because these days सारे जो लोग हैं ना गांव के, ज्यादातर लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, जी जी, उनको बहुत मोहब्बत मिलते हैं। तो and describing that, he is being very emotional, you know. I can feel that, you can see, you know, he is very happy now. वो बहुत सुखी महसूस करते हैं क्योंकि लोग बहुत दिनों के बाद अभी उनका बात सुन रहे हैं। और ये पिनाकीदा जैसे रोज के हैं, बाकी हमारे साथ और भी साथी हैं, हमारे उल्टा तरफ इस प्रोग्राम के ऑडियंसेस भी हैं यहाँ, उन लोगों को दिखा के ये बता रहे हैं कि ये सारे जो हमारे दोस्त हैं, यंग जनरेशंस हैं, ये उनको जरूरत पड़ने से कुछ फाइनेंशियल हेल्प और ये छोटा मोटा हेल्प करते हैं, कभी जरूरत पड़े तो। बहुत मतलब जैसे उनका बेटा का ट्रीटमेंट हो, और एक ऑर्गेनाइजेशन साइकिल दिए हैं, और बाकी लोग प्लान कर रहे हैं कि उनको ये प्लांटेशन के लिए छोटा मोटा टूल्स अगर जुगाड़ करके या खरीद के उनको दें, तो ये सब प्लान कर रहे हैं। तो दैट मीन्स लोग अभी उनका जो सोच है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका जो काम है वो बाकी लोगों के लिए इंस्पायरिंग बन रहा है। एंड ये देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ही इज फीलिंग वेरी हैप्पी। और उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी बुला रहे हैं उनको सुनने के लिए, वो कैसे काम करते हैं ये सुनने के लिए उनको बुला रहे हैं। ये हमारे लिए भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और ही इज वेरी हैप्पी। रजनीश जी। जी जी, और इनको बता दीजिए कि अब तो पूरे देश के हीरो बन चुके हैं आप, और मतलब आपके लिए मतलब युवाओं के लिए तो एक आदर्श है। बल्कि यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जैसे वन्य जीव जंतु हैं, पेड़ हैं, तो कुछ मैसेज देना इनको युवाओं को कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप बोलेंगे तो उसका एक वजन अलग ही बन जाता है। ये बातें तो होती रहती हैं, हर स्कूल में होती है, लेकिन क्योंकि आपने करके दिखाया है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कुछ मैसेज हो कि वन्य जीवन क्यों इंपॉर्टेंट है, और यूथ के लिए स्पेशली मैसेज, क्योंकि हम बड़े थोड़ा खुदगर्ज हो रखे हैं, यूथ भी थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं आजकल, तो उसी पे थोड़ा सा अगर कुछ कह रहा है। हाँ জি বলছেন, আপনার লড়াইটা দেখে সবাই এগিয়ে আসবে। আপনি সরাসরি ইয়াং ছেলেদের, তরুণ মানুষদের আপনি কিছু বলুন, ছোট করে বলুন কি করা উচিত। যেমন আপনি লড়েছেন যে আপনি খাবার কি খাবেন আপনি জানেন না কালকে, তো আপনি গাছ লাগিয়ে যাচ্ছেন, 25 কিলোমিটার সাইকেল নিয়ে আপনি কাজ করছেন। নতুন যারা আছে, নতুন যারা আছে বাবু, তারাকে বলছি যদি আমি গত হয়েও যাই, তোমরা আমারলে বেশি গাছ লাগাও, তবে করুণা ফুরুণা কোনো হবে নাই। আর যতটা দেখছি কারখানা ফারখানা আর সকলটা হচ্ছে, ধুঙ্গায় যদি সব ওই নষ্ট করতেও বেশি পাইবে নাই, করলেও বাঁচতে থাকে। আর যদি গাছেই লাগাবে নাই বেশি, তো সর্বনাশের গোড়া হবে, মরণ হবে, ফটফট মানুষ মরবে। কোন তখন অক্সিজেনের অভাবে হবে জমি। আর যদি গাছ প্রচুর লাগাই, এই ভাই গিলা তোগুলা বলছি যে তোমরা বেশি লাগাচ্ছ, আমারলে বেশি লাগাও, এই তবেই তো আর কোনো করুণা হবে না। ওটা তো মা বটে, করুণা মানে মা বটে, তো ওটা হতে হবে না। আর সবার শরীর ভালো লাগবে। আর এই যে যতটা দেশ, সব দেশ তারা কি করবে, তারা ইয়ং ছেলেরা লাগাত বলছি, গাছকে ভালো রকম লাগাও, জীবকে বাঁচাও, কেউ বাঁচাও বলছে, জীবনকে বাঁচাও, গাছ লাগাও, জীবনকে বাঁচাও। তো গাছ তো লাগানো তো খুবই ভালোভাবে লাগাতে হবে। আর শুধু যে ছবিটাই দেখবো আমি আর গাছ পাছ করে লাগাবো নাই, এটাই কোনো কাজ বলবো। ये बहुत बढ़िया बोले रजनीश जी। जी उनका कहना है कि ये मतलब अगर बाकी सब छोड़ के ये सोचा जाए कि पेड़ अगर नहीं है तो हम बच नहीं सकते, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जितना ये फैक्ट्रीज हो रहे हैं उसका धुआं निकल रहा है, और पेड़ अगर उससे कम होता जाएगा तो एक दिन हम मर जाएंगे। ये डर अगर हमारे बीच में पैदा हो जाए तो यंग जनरेशन के अंदर ये डर भी पैदा करना पड़ेगा
और खुद को ये समझाना पड़ेगा कि हमें जब तक जिएंगे पूरा जिंदगी भर हमें पेड़ लगाना चाहिए और इसी में ही बचने का एक दिशा है हमारे लिए। ठीक है, जी जी, ये जिस्ट है उनका कहने का, ये मतलब है। और बहुत कोरोना भी नहीं होगा, हम मतलब क्या बोलते हैं, हेल्दी होंगे, हमारे एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तो इंसान भी हेल्दी होगा। और इसके लिए हमें ये तय करना है कि आज से हम पेड़ ही लगाना है यंग जनरेशंस को। और वो बोल रहे हैं कि हम तो ज्यादा दिन नहीं बचने वाला है, उम्र हो गए हैं, शायद एक दिन चले जाएंगे, लेकिन हम जितना 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 तक किए हैं, अगर 10 पेड़ भी लगाए हैं, आपको 10,000 लगाना है, ये वाह, उनका। बहुत खूबसूरत बात। और अभी मैं बाकी साथियों से भी इस कार्यक्रम में कोई भी सवाल पूछ सकता है उनसे, हम थोड़ा ओपन है इस बात को लेकर, अगर कोई भी साथी सवाल पूछना चाहे। हालांकि मेरा एक सवाल और था छोटा सा, वो ये था कि कुछ आसपास जो पेड़ से और जंगल से जुड़े जीव जंतु है उसमें भी आपको कुछ फर्क दिखाई दिया होगा, तो वो भी थोड़ा सा बता सकते हैं? अच्छा, शायद पहले बता दी ये बात तो फिर। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, जीव जंतु के बारे में। हाँ हाँ, कुछ फर्क तो दिखा होगा, ज्यादा चिड़िया जो खुद ही बोल रहे थे वो की शुरुआत में। हाँ হ্যাঁ, তো এই যে গাছ কাটার পর পাখি জন্তু জানোয়ার এগুলো হাওয়া হয়ে যায়, সব হাওয়া। কিন্তু এখন এই আপনার যে গাছগুলো লাগিয়েছেন সেগুলো কিছু তো বড় হয়েছে, হ্যাঁ সেখানে আপনি কি দেখতে পান পাখি, হ্যাঁ 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 কাঠবিড়ালি, কি দেখেন কিরকম লাগে? ভালো লাগে। ওই যে সব আসে তখন মূল্য বসে, তারপরে এই সকল কত জীব আছে, সকল কুইলি আছে, হ্যাঁ, তারপরে কি দেখেন? কি কি জন্তু? হরিহর আছে, এইগুলো জন্তুগুলো আছে, অনেক রকম জন্তু আছে। পাখিগুলো যেগুলো বলছি লোকাল নাম আর কি, হরিয়ল এক ধরনের আপনার ওই ঘুঘুর মতো দেখতে। এই পায়রাগুলো পায়রার মতো। সেগুলো আসতো না, এখন আসছে। ও, আবার কিছু কিছু মানে কত হয়ে গেছে, চলেও গেছে। যেগুলো কাক যেমন এখন দেখা যাচ্ছে। তারপর এখন আবার আসছে, ফিরে আসছে। কিছু আবার চেঞ্জ হয়ে গেছিল আপনার ওই যে ময়না যেগুলো বলছি, শালিক, সেগুলো আপনার এখানে হলুদ কালারের চোখের ইয়ে ছিল, সেগুলো আবার পাল্টে এখন লাল কালারের এসেছে। হলুদ কালারটা আবার এখানে নেই। ওকে, পরিবর্তন কিছু ঘটেছে। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रजनीश जी, जी जी जी, कि कुछ प्रजाति के पंछी जो यहाँ देखने को नहीं मिलते थे बीच में कुछ साल, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, जैसे उसमें क्रो भी शामिल है, शालिक एक प्रजाति है पंछी का, और हरिओड़ वन टाइप ऑफ पिजन, ये देखने को नहीं मिलता था बीच में बहुत साल, लेकिन वो फिर से देखने मिल रहे हैं। They are visible now. They are returning back to this area. Okay. समझ रहे हैं? So it's a very एक ऑब्जर्वेशन मिला, मतलब भी मिला कि 2-4 प्रजाति जिनका नाम वो बता रहे हैं, 4 तो ऐसे ही हो गया, उसमें क्रो भी शामिल है, वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिजन जो इस एरिया में दिखता था बीच में नहीं दिख रहा था, एंड दे आर रिटर्निंग बैक। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इंफॉर्मेशन है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम कोई युवा साथी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैसेज भी टाइप कर सकता है और सीधा पूछ भी सकता है। कनाडा जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर साहब हैं, शशि साहब हैं, तो वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इनसे। शशि, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, माइक ऑन। हाँ जी, नमस्कार। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि इतना अच्छा काम अगर गांव में होता है तो वन विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं उनका इसके प्रति क्या रवैया है, उनका क्या संबंध है? आपका गांव और वन विभाग के अधिकारी लोग हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, और क्या आपका ये काम देखकर वो लोग प्रोत्साहित हुए हैं या चिंतित हुए हैं? বন দপ্তরের লোকেদের কি প্রতিক্রিয়া, মানে তারা আপনার কাজকে কি সাহায্য করে বা উৎসাহ দেয়, নাকি তারা রাগ করে, তারা কিছু করে কি? আমাকে মূল্যবান দিয়ে কত আনন্দ করিয়ে রাখেন ওরা, আর আমাকে দিও আর ভালোবাসে। আচ্ছা, আমার খুব ভালোবাসে। ওই বন বিভাগের লোকগুলো ভালোবাসে যে এই ভালো কাজ করছে, আর আমাকে আরো বলছে যে তুমিও আমাদের এই যে লাগাই গাছ দিবা, গাছ লাগালে খুব রকম ভালো হবে।
আমাদের গাছগুলো যদি কাটাই তো তোমার গাছ কাটাবে। আচ্ছা ও বলে যে তোমার গাছ জমিটা সেটা কাটাবে না, আমাদের গাছ কাটার পরে যখন আমরা বুঝে যাবো তখন রেঞ্জার ফরেস্টার বলছি এই রাস্তাটা এই যে গোটাটা আমার লাগাবো একটা তুলে ওই তুমি লাগাবো, তোমার গাছটা কেউ কাটবে, আমাদের একটা কাটতে পারে তার কারণ আছে, এই যে ভালোবাসবে তো তখন তোমার গাছ কেউ কাটবে। এই কেউ জঙ্গলে যদি থাকে তো তোর এই পাবলিক লোক কাটবে করে আর অন্য ওরাও নেই কাটবে अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज जान मिला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उनको फैसिलिटेट किया गया था एक प्रोग्राम में हाल ही में। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग उनका नर्सरी से उनको मतलब वो सैपलिंग्स देते हैं कि आप ये ले जाइए इसको मतलब प्लांटिंग कीजिए। और उनका लगा हुआ जो पेड़ है उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मतलब प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं जो पहले लगाए हुए हैं या अभी लगा रहे हैं। और ये वादा किए हैं अगर किसी भी जरूरत से पेड़ काटना भी पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से भी कभी कभी पेड़ काटने को होता है, मतलब जरूरत भी पड़ता है, उसका कोई रीजन होगा, हाँ रीफलिंग व्हाटएवर। सो तो अगर जरूरत पड़े वो काटेंगे, लेकिन इनका लगा हुआ पेड़ बिल्कुल नहीं काटेंगे और उनको वो प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है, और बहुत प्रोत्साहन देते हैं। और हाल ही में मैंने जैसे बताया कि दे आर वेरी थैंकफुल टू देम, देर यू नो वो एक्नॉलेज भी करते हैं। और कोई साथी अगर कोई सवाल पूछना चाहे, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हो गया है, कोई भी साथी अगर कुछ पूछना चाहे अंत में, फिर उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया सर, दुखुमाजी जी का और सुदीप सर का भी ऐसे अनुभव के लिए। जिस समय हमें पर्यावरण की सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब हम अलग अलग विभागों में सोच रहे हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकें, वैसे समय में दुखुमाजी द ट्री मैन ऑफ इंडिया से बात करने का मौका मिला सामने, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये जीत सर ने भी बताया कि शायद एक पेड़ की कीमत या जंगलों को बचाने की जरूरत क्यों है। अभी हम कोरोना से पूरी दुनिया गुजरी और एक अफरा तफरी मची पूरी दुनिया में, उसके बाद शायद दुखुमाजी सामने आते हैं और एक एक पेड़ की कीमत हम जैसे लोगों को समझा जाते हैं। ये बहुत इंस्पायरिंग था और इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये मेरे लिए तो एक फैन मोमेंट था कि हाँ, शायद कहा यह जाता है कि शायद एक इंसान पूरे समाज को शायद ना बदल पाए, लेकिन एक इंसान ने वो इस तरह से इंस्पायर तो कर दिया कि शायद हाँ, वो जो दिशा दिखाना चाह रहे थे वो शायद वो दिशा तो उन्होंने दे दी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सुदीप सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। थैंक यू। अगर नहीं होते तो शायद ही डॉक्यूमेंट्री नहीं बनता, और आरजीएफ नहीं होते तो शायद डॉक्यूमेंट्री नहीं मिलता है। And he is really an inspiration for all of us, and let us help him at any way। मतलब हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको अगर हेल्प किया जाए तो वो, हालांकि वो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, लेकिन टेक्निकली किसी भी तरह अगर उनको हम हेल्प करें, कोई सुझाव आपका भी होगा उनका काम को कैसे आगे बढ़ाना जाए, he is free to take any type of suggestions from any corner from the country, so he is also thankful। আপনি বাংলায় বলুন, আপনাকে ওনারা ধন্যবাদ দিচ্ছেন এই কাজটা আপনি যে করেছেন সেই জন্য। আপনি বলবেন এক লাইন লাস্ট, এক লাইনে বলে দিন লাস্ট। सुदीप, दुखो दादा को बताओ। दुखो दादा, आपने जानेन के ये प्रोग्राम है बहुत भारत विभिन्न प्रदेशर लोग आछे, केरला थी के लोग आछे, काश्मीर थी के लोग आछे, उत्तराखंड थी के लोग आछे, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगह আপনাদের সন্দেশ দিতে পারে। আমাদের
একটা বন্ধু যে কানাডা দেশ আমেরিকা পারে কানাডা দেশ সে এখন আপনাদের কথা বলেন শশী দাদা খুব ধন্যবাদ थैंक यू सर। लेकिन दादा आपको छोड़ेंगे नहीं, आखिरी में वो जो आप गाना गा रहे थे, गाना तो आप सुनाएंगे आखिरी में, ये बहुत जरूरी है। We must end with the गाना। Yes। अच्छा वो जो है आपने बोली अगर पर्यावरण का गाना हो तो और अच्छा है। हाँ जी सर, पेड़ का कोई गाना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दादा को जो पसंद हो वो सुना रहे। কানাডা, কেরালা, কাশ্মীর, সারা ভারতবর্ষের অনেক মানুষ দেখছেন, শুধু ভারতবর্ষ নয় বাইরে থেকেও দেখছেন। আপনাকে সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার আপনার একটা ছোট গান শুনতে চাইছেন, যেটা গাছের পেড়কে নিয়ে হবে গান। তবে জয় বড় লাগাও বাবা, ওহ জয় বড় লাগাও বাবা, জঙ্গল জঙ্গল লাগাও বাবা, জয় লাগাও বড় লাগাও, লাগাও দাদা ভাই, ওহ আম লাগাও জাম লাগাও, আম লাগাও জাম লাগাও, সকল বহ লাগাও দাদা ভাই রে। তবে পিয়ালো আর সালো এই সকল লাগাও, বড় বড় বৃক্ষ হবে দাদা হে, তবে ভালো হইবে দেশ হে, সকল দেশ ভালো হবে জানো হে। অক্সিজেন ভাবনা কব হবে নাই হে, ওই সব জ্বালা যাবে দাদা, প্রভু একটা বটে দাদা জানি হে। আমেরিকা, ফরেন, জার্মান, জাপান একটাই মালিকই আছে দাদা, একটাই মালিকই আছে দাদা বলে, ওহ সবার মরণ দাদা, সবার মরণ হবে দাদা, লেগিবে গিয়ে একজন জানিয়ে। গাছ লাগা বহুত বহুত ভালো দাদা, কাটিলে তো নষ্ট হয়ে যায় হে, এই জীবন ধন গাছ জীবন ধন, যত জীব আছে দাদা তত গাছ লাগালে কোনো ভয় নাই দাদা, ভয় নাই হে। ধনে কি কাজে দিবে গে দাদা বল গে, অক্সিজেন পাবে নাই ধনে, গাছে গাছড়া লাগাও দাদা প্রাণে বাঁচিবে, ওহো প্রাণে বাঁচিবে দাদা, আর বাঁচিবে যে দাদা ও হে ভাই হে। বিল্ডিং ঘরে থাকলেও একতলাতে দুতলাতে, এই 3 তালা 4 তালাতে থাকলে উপরে কোনো ভয় হবে নাই হে, গাছের হাওয়া খায় বাঁচবে জানো দাদা ভাই, টাকায় কোনো মিলবে নাই হে, টাকায় কোনো মিলবে নাই হে। রাজা মোরে ধীরাজ মোরে কোটি কোটি টাকা আছে, তারা মোরে ভাই ভবিষ্যৎ থেকে ভাবলে রে ভাই, গাছ কাটো না রে দাঁড়া, গাছ প্রচুর করোন রে ভাই, তোমাকে রাখে প্রণাম করি রে ভাই, ভালো কাজে লাগাবি
টাকা পয়সা ধন তোর ধর্ম হয়ে যায় দাদা, ধর্ম হয়ে যায়। প্রাণে তোর ভালো দিবে কে ভাই, ঈশ্বর দিবে গে দাদা, ঈশ্বর দিবে গে দাদা ভাই রে। মরণ একই পথ ওঠে, মরণ এক পথ ওঠে ভাই রে। হাম মরব তুমি মরবে মরণ হবে ভাই। প্রণাম, জয় জয়। बहुत खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। it's धन्यवाद। ये बहुत लंबी है, ये झूमुर बोलते हैं, इस फॉर्म को झूमुर बोलते हैं। पुरुलिया का एक टाइप ऑफ सॉन्ग फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म, एंड ही इज डूइंग इट इंस्टेंटली। ये लिरिक जो है Fantastic. वो इंस्टेंट बना रहे हैं, जी जी, एंड इट्स वेरी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इन अ वन लाइन। अर्थ जो है, रुपया जो है वो पड़ा रहेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम बच नहीं सकते। तो बिल्डिंग बनाओ, उसके साथ साथ पेड़ भी लगाओ। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइएगा, तब जाके आपको जीना मतलब जी सकते हैं। तो दैट इज द मेन थॉट ऑफ दिस सॉन्ग एक्चुअली। थैंक यू सो मच दादा। खूब 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 धन्यवाद, खूब धन्यवाद। पिनोकिदा आपका আপনাদের धन्यवाद। सुदीप আপনাদের धन्यवाद। Rajneesh, Jeet, everybody. Thank you. Arun, bye. Shashi, special thanks for joining from Canada. Sujata from Kerala, Aizaz from Kashmir, and Prabhaji from Uttarakhand. Many others. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving us this opportunity, and I am thankful to entire team, Arunji, Rajneeshji, Jeetji, and everybody who are participating here, Pinaki Da as well as, and finally, Dukhu Maji.